صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن انسان کے کام نہ مال آئے گا نہ بیٹے آئیں گے۔ انسان کے کام نہ اس کا مال آئے گا نہ بیٹے آئیں گے۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اپنے دل پر محنت کر کے اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگا کے جذبات پیدا کر کے رب کریم کی بارگاہ میں گیا ہوگا، یہ ثمرہ ہوا دل اس کے کام آئے گا، یہ محنت کیا ہوا دل کام آئے گا۔ اب دیکھیے رب کریم نے دو باتوں کی نفی فرمائی ہے، ایک مال کی ایک اولاد کی۔ اب ان دو پر ہی بندے کو مان ہوتا ہے، چاہے کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو، بندے کو مان ہوتا ہے جی میرے پاس اگر مال آ گیا تو پھر میں بھی بڑا طاقتور بن جاؤں گا۔ چودھری صاحب کو پہلے کہتا ہے محلے کا جو تھوڑا ہوتا ہے نا بڑا، اس کو چودھری صاحب اور میاں صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، اور پھر جب اپنے پاس مال آ جاتا ہے وہ کھڑا بھی ہوتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، اگر اس کے پاس اچھا گھر ہے تو میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس اگر گاڑی ہے میرے پاس بھی ہے، اگر اس کے پاس نوکر ہے اور خدمت کرنے والے ہیں تو میرے پاس بھی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب میرے دوستوں میرے عزیزوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو اس چکر میں نہ رہ، یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر مال سے عزتیں ملتی ہوتی تو آج قارون سب سے بڑا عزت دار ہوتا، قارون سب سے بڑا عزت دار ہوتا۔ تھوڑا آگے ہو جاتا ہے، پھر پیچھے ساتھی ہیں دوسری جگہ پر تھوڑا آگے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر مال سے عزت ملتی ہوتی تو پھر قارون سب سے بڑا عزت دار ہوتا۔ لیکن میرے دوستوں میرے عزیزوں، عزت مال میں نہیں ہے، عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، عزت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ جی میرے پاس مال ہے تو میں لہذا میرا سارا کام بن جائیں گے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے مال کے ساتھ کچھ کام تو بن جاتے ہیں، سارے کام نہیں بنتے۔ مثال کے طور پر آپ اگر دیکھیں، مال بندہ خرچ کرے تو مال خرچ کر کے بندہ ایک خوبصورت بیڈ لاتا ہے تاکہ میں اس پر نیند سکون کی سو سکوں۔ ہم نے دیکھا ہے، میں نے خود پڑھا کہ ایک وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے لیے کراچی سے 30 لاکھ کا بیڈ منگوایا، صرف 30 لاکھ کا بیڈ۔ اب آپ اندازہ کریں، بندہ آج کل ہمارا جیسا جو ہے بندہ مکان بنا لیتا ہے 30 لاکھ میں، تو وہ فقط ایک بیڈ کہ جس پر اس کی اہلیہ نے سونا ہے، اس نے سونا ہے، وہ لے کے آیا ہے۔ تو اب میرے دوستو عزیزو، ہوتا کیا ہے، مال لگا کے بندہ بیڈ تو خرید سکتا ہے لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتا، نیند نہیں خرید سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، بلکہ مالدار کیا، مال کے چوکیدار جو ہوتے ہیں، مالدار نہیں ہوتے، مال کے چوکیدار ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو سکون کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ بھائی یہ کس بلا کا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک گولی ہوتی ہے کہ جس کو اگر بندہ کھا لے تو نیند بڑی سکون کی آ جاتی ہے،
अब अंदाजा करो, माल मौजूद है, अल्लाह अकबर कबीरा, बंदा गोलियां तो खरीद सकता है लेकिन बंदा सेहत नहीं खरीद सकता। अगर माल से सेहत खरीदी जा सकती होती तो मेरे दोस्तों आपको दुनिया में कोई अमीर आदमी बीमार ना मिलता, कोई बीमार आदमी, अमीर आदमी आपको बीमार ना मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे हजी दाम बरकातुहू फरमाते हैं कि मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए और फरमाते हैं, मैं इशा के बाद मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है आराम करें, तो मैं इंशाल्लाह सुबह तहज्जुद में आ जाऊंगा और फिर इकट्ठे मस्जिद में फजर पढ़ने के लिए जाएंगे। फरमाते हैं, उन्होंने कहा जी हजरत ठीक है। फरमाते हैं मैं घर चला गया और उस वक्त हमारे हजरत की अपने घर के साथ ही ये बस इतना सहन जितने ये जगह है, इतनी सी हजरत की एक जगह होती थी, उसको हजरत ने खानका बनाया हुआ था। एक कमरा था, उसमें आगे छोटा सा एक सहन था, उसी में जो साथी बाहर से आते थे तो उसी में सोते थे और रहते थे, और हजरत के घर से एक दरवाज़ा खुलता था उसमें। तो आप फरमाते हैं मैं जो उनको छोड़ के गया, तो मैं सुबह जो तहज्जुद के लिए आया तो मैंने क्या देखा कि जहां डॉक्टर साहब को छोड़ के गया था वो डॉक्टर साहब वहीं बैठे हुए थे, दीवार के साथ टेक लगाई हुई है, टांगों को ऐसे फैलाया हुआ है। फरमाते हैं मैं समझा कि माशाअल्लाह डॉक्टर साहब नेक आदमी है, अब रात जो है कोई अल्लाह अल्लाह मतलब उठ के कर रहे होंगे, तहज्जुद पढ़ी होगी, अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे, तो इसलिए बैठे हैं। फरमाते मैंने पूछा डॉक्टर साहब सुनाए आपकी रात अच्छी गुजर गई? डॉक्टर साहब आपकी रात अच्छी गुजर गई? उन्होंने कहा जी हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रात अच्छी गुजर गई। तो मैं आप खूब सोए? कहते हजरत बस कुछ ना पूछे। हजरत कुछ ना पूछे, भाई क्या हुआ? कहते हजरत मेरा मसला है कि मैं लेट के सो ही नहीं सकता, क्यों कि मेरे मैदे का वाल खराब हो चुका है। अगर खाना जब बंदे के अंदर जाता है ना तो एक वाल होता है जो बंदे को ऐसे आगे से लात लग जाता है, बंद कर देता है। आप अभी खाना खा के उल्टे लटक जाए, खाना मुंह के जरिए से बाहर नहीं आएगा। अब तो ये ना कि बाहर आ जाए, भाई अभी अभी खाया है तो बाहर आ जाए, लेकिन नहीं आता। क्यों? इसलिए कि रब्बे करीम ने निजाम ही ऐसा बना दिया है, खाना अंदर जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक लाक लग जाता है, बंदा उल्टा लेटे उल्टा खड़ा हो जाए, जो मर्जी करे, खाना बाहर नहीं आता। तो उन्होंने कहा हजरत मेरा वो वाल खराब हो चुका है, अब अगर मैं लेटता हूं तो मेरे मुंह के जरिए से खाना बाहर आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उन्होंने कहा मैं पिछले कई सालों से लेट के सोने की नेमत से महरूम हूं, मैं टेक लगा के बस बैठ के सोता हूं। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक डॉक्टर आदमी है, मालदार बंदा है, लेकिन मेरे दोस्तों माल उसको नफा नहीं पहुंचा रहा। अगर माल के जरिए सेहत मिलती होती तो कोई भी अमीर आदमी बीमार ना होता, कोई भी अमीर आदमी बीमार ना होता। आप जाए लाहौर जाके देखें, अपनी आंखों से देखा हुआ है, डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाते हैं। हम तो यहाँ चले जाते हैं ना, 20 रुपए दिए 30 रुपए दिए, अल्लाह का शुक्र है जान छूट जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप वो जाके कभी लाहौर जाके देखें, बड़े बड़े जो प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं, हमारा तजर्बा है, हमने देखा हुआ है, जाते हैं उनके जो है क्लिनिक के बाहर पराडों के अलावा आपको गाड़ी नजर नहीं आएगी। इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में लोग आए हुए होते हैं, महीनों पहले टाइम लिया हुआ होता है। जी क्या मसला है? जी मेरे गुर्दों का इन्फेक्शन हो चुका है, मेरे जिगर मुतासिर हो चुका है, मुझे शुगर हो चुकी है, मुझे ये मसला हो चुका है, मुझे ये मसला हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। अमीरों से बड़े बड़े पड़े हैं। क्यों भाई, क्या वजह है? भाई बात ये है अल्लाह अकबर कबीरा कि अगर माल से सेहत मिलती होती तो कोई अमीर बंदा बीमार ना होता। इसलिए माल को सब कुछ ना समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर देखो माल के जरिए से अभी मैं आपसे अर्ज करूं, अभी असर के वक्त मेरे पास लाहौर से एक फैमिली आई,
ان کا ابھی یہ اتنا سا بچہ ہے، اتنا سا بچہ، اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی، میں نے سمجھا یہ درویشوں کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، تو میں جو مسجد میں آیا بڑی خوبصورت اور میرے خیال سے 20-30 لاکھ کی گاڑی ہوگی جس میں وہ آئے تھے، تو اتنا سا بچہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے یہ بچے جتنا، تو اب اندازہ کریں انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اب یہ بول ہی نہیں سکتا، یہ اب جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی کیا کرے بندہ؟ تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ مال سب کچھ نہیں ہے۔ میرے رب نے جو فرمایا نا کہ میرے بندے مال تجھے نفع نہیں دے سکتا، یہ سچ فرمایا ہے، اور پھر فرماتے ہیں میرے بندے تجھے جہاں مال نفع نہیں دے سکتا وہاں تجھے تیرے بیٹے بھی نفع نہیں دے سکتے، وہاں تجھے تیرے بیٹے بھی نفع نہیں دے سکتے۔ اب دیکھو اللہ نے بڑی زبردست بات جو ہے فرمائی ہے، ابھی اللہ نے دل میں ڈال دی، سبحان اللہ، کہ دیکھو مال ہوتا ہے امیروں کے پاس، مال ہوتا ہے امیروں کے پاس، انہیں مال پہ ناز ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے غریبوں کے پاس، ایسی بات ہے؟ جی ہاں، غریب بندے سے پوچھو ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں، جی ماشاءاللہ میرے 5 بچے ہیں، میرے 7 بچے ہیں، میرے 12 بچے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ ابھی تک صحت مند ہے، ماشاءاللہ ان کے 29 بچے ہیں، ماشاءاللہ ان کے 29 بچے ہیں۔ تو مال ہوتا ہے امراء کے پاس، ٹھیک ہے، بچے ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتے، وہ ڈرتے ہیں بیچارے، بہت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ حالانکہ مال کی فراوانی ہوتی ہے لیکن پھر ڈرتے ہیں کہ ان کی پرورش کیسے کریں گے، ان کی تربیت وہ پڑھائے لکھائیں گے کہاں سے، او ہو اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غریب کو کوئی اور کام نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں، وہ سبحان اللہ بھی ہر چیز سے بے پرواہ ہو کے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے رہے ہوتے ہیں، وہ مزے سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو امیر ہے، تیرے پاس اگر مال ہے تو تو مال پہ فریفتہ نہ ہوا کر، مال کو سب کچھ نہ سمجھ لیا کر، اور میرے بندے اگر تو بظاہر غریب ہے، تیرے پاس اتنا مال نہیں ہے، تیرے پاس اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو بیٹوں پہ فریفتہ نہ ہوا کر، بیٹوں پہ مان نہ کیا کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ نے دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، گویا یوں فرمانا چاہ رہے ہیں امیروں تم بھی سن لو، غریبوں تم بھی سن لو۔ جی اللہ کیا سنے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، کیا کام آئے گا؟ جی ہاں، جو تو نے دل پر محنت کی ہوگی، دل کو چمکایا ہوگا اللہ کی محبت کے ساتھ، یہ چمکا ہوا دل کل قیامت کے دن تیرے کام آئے گا، یہ دل تیرے کام آئے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم اس دل پر محنت کریں، ہم اس دل پر محنت کریں۔ جی ہاں، یہ محنت کی چیز ہے۔ یہ میں دوائی کے طور پہ پیتا ہوں کیونکہ تھوڑا مجھے مسئلہ ہے۔ تو اب آپ حضرات اندازہ کریں اللہ کیا فرماتے ہیں، میرے بندے دل پر محنت کر، دل پر محنت کر۔ اس لیے میرے حضرت پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دام برکاتہم فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، میری بیٹیوں میری بہنوں آپ بھی سنو، میرے عزیز ساتھیوں آپ بھی سنو۔ فرماتے ہیں یہ دل چھوٹا ہے، یہ دل چھوٹا ہے، لیکن اگر یہ سنور جائے تو یہ سونے کا ٹوٹا ہے، اگر یہ سنور جائے تو یہ سونے کا ٹوٹا ہے۔ اور پھر اندازہ کرو یہ دل ہے کتنا، بکرے کا دیکھا کبھی، اتنا ہی انسان کا ہوتا ہے، بلکہ اسے تھوڑا چھوٹا ہی ہو، اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے، لیکن اس دل کی حکومت پورے وجود پہ چلتی ہے، اس دل کی بات حکومت سارے وجود پہ چلتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان بیٹھا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا روٹی کھا لے، کہتا ہے امی میرا دل نہیں چاہتا۔ بھائی روٹی کھانا کوئی تیرے دل کا کام ہے؟ روٹی تو منہ کے ذریعے آپ نے دانتوں کے ذریعے چبانی ہے، پیٹ میں اس کو داخل کریں گے، معدہ اس کو ہضم کرے گا،
इसमें दिल का चक्कर कहां से आ गया? लेकिन क्या कहता है, मेरा दिल नहीं चाहता। भाई आप पानी पी ले, जी मेरा दिल नहीं चाहता। बेटा आप अपनी बीवी से बात नहीं करते हैं? मां कहती बेटा आप अपनी बीवी से बात नहीं करते, आप अपनी बहन से बात नहीं करते, आप अपने भाई से बात नहीं करते। क्या कहता है, मेरा दिल नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। भाई और बात तो मुंह से करनी है, बोलना जुबान के साथ है, ये दिल कहां से आ गया? अंदाजा हो गया कि दिल एक अहमियत की हामिल चीज है, इसकी पूरे वजूद के ऊपर हुकूमत है। जी हाँ, पानी पी लो कहते हैं दिल नहीं चाहता, रोटी खा लो दिल नहीं चाहता, बात क्यों नहीं करते कहते हैं दिल नहीं चाहता। इस बात से पता चल गया कि दिल की हुकूमत है सारे वजूद के ऊपर, दिल की हुकूमत है सारे वजूद के ऊपर। इसलिए फरमाते हैं ये दिल है छोटा, अगर संवर जाए तो ये फिर सोने का टोटा है, ये फिर सोने का टोटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाँ, और इसलिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला इन्न फी जसद बनी आदम मुज़गा। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं सुनो लोगो सुनो, मेरी बेटियों आप भी सुनो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा सुनो सुनो, ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूँ। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अला, और खबरदार सुनो, सुनो इंसानों सुनो, बेटियों सुनो, मेरे अजीज साथियों सुनो। जी अल्लाह के नबी क्या सुने? फरमाया सुन इन्न फी जसद बनी आदम मुज़गा। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं बनी आदम के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है। इज़ा सालहत सालहल जसद कुल्लु। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अगर ये गोश्त का लोथड़ा ठीक हो जाए, बंदे का सारा वजूद ठीक हो जाता है। इज़ा फसदत, अगर ये खराब हो जाए, फसदल जसद कुल्लु। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं फिर बंदे का सारा जिस्म और वजूद खराब हो जाता है। अल्लाह के नबी ये इतनी अहमियत की हामिल कौन सा टुकड़ा है? नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं लोगों वो कोई और नहीं है, वो तेरी आंख नहीं है, वो तेरे कान नहीं है, वो तेरी जुबान नहीं है, वो तेरा हाथ नहीं है, वो तेरे पाँव नहीं है, वो तेरा मैदा नहीं है, वो तेरा वजूद नहीं है। अल्लाह के नबी फिर क्या है? नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अला वहियल कल्ब, सुन वो तेरा दिल है, वो तेरा दिल है। अगर तेरा दिल ठीक हो गया समझ तेरे आमाल ठीक हो जाएंगे, अगर तेरा दिल खराब हो गया समझ तेरे आमाल खराब हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, अगर दिल ठीक है समझ लो आंख ठीक है, अगर दिल ठीक है समझ लो जुबान ठीक है, अगर दिल ठीक है समझ लो हाथ ठीक है, अगर दिल ठीक है सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक पूरे का पूरा इंसान ठीक है। और अगर ये बंदा, अगर आपको नजर आ जाए, अगर आपको नजर आ जाए कोई नौजवान बाजार में खड़ा है लेकिन गुजरने वाली माओ बहनों बेटियों बहुओं की तरफ ऐसे नजर डाल के देख रहा है जैसे शिकारी कुत्ते देखते हैं, तो समझ जाओ कि इसका दिल खराब है, इसका दिल खराब है। जी हाँ, इसका दिल खराब है तभी इसकी आंख खराब है। दिल ठीक नहीं है इसलिए दूसरों की इज्जतों की तरफ शिकारी कुत्तों की तरह नजरें डालता है। शिकारी कुत्ते को कभी देखा? हमने देखा हुआ है, उसका मुंह छोटा सा होता है, उसका वजूद भी पतला सा होता है, बिल्कुल छोटा सा मुंह होता है, पतला सा मुंह होता है और लंबा होता है। मुंह लंबा होता है, छोटा पतला सा होता है, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब उसको छोड़ते हैं मालिक, उसको छोड़ता है शिकार के लिए, तो वो फिर जब जंगल में भागता है तो मेरे दोस्तों हर खुड के अंदर वो मुंह डालता है, हर खुड के अंदर मुंह डालता है कि शायद मेरा शिकार यहां मिल जाए, शायद मेरा शिकार यहां मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह जिसका दिल खराब है फिर उसकी नजरें खराब हो चुकी हैं। अब यही नौजवान बाजार में जाता है तो गैर महरम औरतों को देखता है, घर में बैठता है तो गैर महरम औरतों के साथ बातें करता है। जी हाँ, रिश्तेदार ब्याह शादी में चला जाए। हत्ता कि मैं आपको एक और बात सुनाऊं, अल्लाह अकबर कबीरा, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, अल्लाह अकबर, और आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। शादी ब्याह दूर की बात, शादी ब्याह
खुशी का मौका है, इसको छोड़ दो। इसमें तो लच्चरबाजियां जो कुछ करते हैं करते ही हैं। हमने इन आंखों से देखा हुआ है 10 मुहर्रमुल हराम जब आती है, 10 मुहर्रमुल हराम जब आती है, हालांकि वो दिन है अल्लाह अकबर कबीरा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे की शहादत का है, जन्नत के सरदार सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने इन आंखों से नौजवानों को देखा हुआ है, वो जो मजालिस होती हैं, जो वहां जब जाते हैं कैसे जाते हैं, स्याह कपड़े पहनते हैं, माया लगाई है, फिर ऊपर कढ़ाइयां कढ़ाई हुई होती हैं, क्या चीर निकालते हैं, क्या क्या कुछ करके जाते हैं। कहता है भाई मजलिस में जाऊंगा वहां मेरी सहेली आई हुई होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अंदाजा करो, अंदाजा करो, इसका मतलब यह है कि इसका दिल खराब हो चुका है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तभी तो इसकी नजर पाक नहीं रही है, तभी तो इसकी नजर पाक नहीं रही है। औरतों को हम देखें, घर में बैठी होती है, उसी घर में मां सगी होती है, जब तक ये ब्याही नहीं होती सगी मां होती है। सगी मां काम कह दे, कहती है तूने मुझे क्या तंग कर दिया है, तूने मुझे क्या तंग कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। घर में भाभी होती है, उसी को परेशान करती है, भाभी नंद को परेशान करती है, नंद बहन को, उसको बहू को भाभी को परेशान कर रही है, सास बहू को परेशान कर रही है, बहू सास को परेशान कर रही है, देवरानी जो है जेठानी को परेशान कर रही है, जेठानी देवरानी को परेशान कर रही है। जुबान से ऐसे ऐसे जुमले बोलती है, कहती है फिर देखा मैंने, उसने एक सुनाई मैंने 10 सुनाई है, अब जलती रहेगी, कमरे में जाके सड़ती रहेगी, देखा मैंने कैसे उसका दिल जलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी बेटी, मेरी बहन, जरा सुन ले, जो तेरी जुबान काबू में नहीं है, जो दूसरों के दिल दुखाती फिरती है, इसका मतलब यह है कि तेरा दिल ठीक नहीं है, तेरा दिल ठीक नहीं है। अगर तेरा दिल ठीक होता, अगर तेरा दिल ठीक हो जाता तो तू फिर क्या करती, तू दूसरों के दुख बांटने वाली बन जाती, दूसरों को दुख देने की बजाय उन्हें सुख देने वाली बन जाती, उनके गमों को अपना गम समझने वाली बन जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इसकी नजर ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका मतलब ये है, अगर इसकी नजर, इसकी निगाह ठीक होती, ये दूसरों की इज्जतों का मुहाफिज बन जाता, ये दूसरों की इज्जतों का मुहाफिज बन जाता। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम में यही शान थी कि मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन मक्का के जो नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को मक्का की गलियों में घसीटा नहीं है, मक्का की गलियों में घसीटा है, मक्का की गलियों में मारा है बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वही मुशरिकीन मक्का जब अमानत रखवानी होती थी तो नबी अलैहिस्सलाम के पास रखवाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पे चढ़ के क्या पूछा था, मुझे बताओ तुमने मुझे कैसा पाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जर्रबना लक मिरारा, है, हमने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 10 दफा नहीं, हमने सैकड़ों मर्तबा तेरा तजर्बा किया है। मा वजदना का इल्ला सिद्का, हमने तुझे सच्चाई के सिवा तेरे अंदर कुछ नहीं पाया, तुझे सच्चाई पाया है, तुझे अमीन ही पाया है, अमानतदारी पाया है। अच्छा और बात सुनो, चलो माल तो रखवा लिया, माल तो अमानत के तौर पे रखवा लिया। आप कहेंगे जी कोई बात नहीं, माल की क्या बात है, बाज़ औक़ात बंदे माल की भी परवाह नहीं करते, कोई बात नहीं यार, माल रखवा लिया, माज़अल्लाह अगर खा पी भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर अल्लाह और दे देगा। लेकिन अगली बात सुनो, अगली बात यह है, उन्होंने सिर्फ माल ही नहीं रखवाते थे, जब कहीं उन वक्तों में सफर दूर के होते थे, महीनों के होते थे, जब सफर पे कहीं जाते थे माल भी रखवा के जाते थे, जवान उम्र बेटियां भी घर में छोड़ के जाते थे।
अल्लाह अकबर कबीरा। जवान उम्र बेटियां भी सहाबा के घरों में छोड़ के जाते थे, और हालांकि सबसे ज्यादा दुश्मन भी सहाबा के थे, लेकिन बेटियां उनके घरों में छोड़ के जाते थे। क्यों भाई, क्यों छोड़ के जाते हो? वो कहते थे इसलिए कि हमें अपने सगों पे इतना एतमाद नहीं है जितना ये इन परायों पे एतमाद है। अल्लाह अकबर कबीरा। सगा हमारी इज्जत की इतनी हिफाजत नहीं करेगा जितनी ये लोग हिफाजत करेंगे। क्यों? इसलिए कि दिल ठीक है, दिल ठीक है, दिल ठीक है। और आज मुझे बताओ, आज क्या है? कोई हमारा हमसाया अपनी बेटी को कहीं जाए, हमारे घर में छोड़ के जाने के लिए तैयार है? छोड़ के जाने के लिए तैयार तो बड़ी दूर की बात है, एक मिनट के लिए भी हमारे घर में भेजने के लिए तैयार नहीं। ये क्यों? इसलिए कि एतमाद नहीं है। पता है अगर मैं छोड़ गया तो माज़अल्लाह मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। भाई ये मुसलमानी तो नहीं है, ये मुसलमानी तो नहीं है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल मुस्लिमो, मुसलमान कौन होता है? सवाल है ना, ये मुसलमान कौन होता है? मुसलमान की तारीफ क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमान की तारीफ बताई है। मेरे नौजवान साथियों आप भी सुनो, मेरी बेटियों बहनों आप भी सुनो। मुसलमान कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने बताया अल मुस्लिमो, मुसलमान कौन है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो, जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। आज क्या महफूज है? बताओ जी, क्या महफूज है? बिल्कुल महफूज नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें फिक्र करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्या मैं मुसलमान भी हूं कि नहीं। सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका मतलब यह है कि मेरा दिल ठीक नहीं रहा, दिल ठीक नहीं रहा है। अगर ये छोटा सा टुकड़ा ठीक हो जाता, अभी समझो अल्लाह ने और बात दिल में डाल दी। ये मोबाइल है ना, ये हमारे पास है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप 50,000 का मोबाइल लेके आए हैं, 50,000 का मोबाइल लेके आए, लाख का मोबाइल लेके आए, कीमती मोबाइल हो गया ना, जितना मर्जी कीमती मोबाइल लेके आए, लेकिन इसके अंदर जब तक आप कनेक्शन वाली छोटी सी सिम नहीं डालेंगे ये सिग्नल नहीं देगा। आप बात नहीं कर सकते, इसमें सिम नहीं है, लाख रुपए का मोबाइल है लेकिन ये किसी काम का नहीं है। और आप 1,000 वाला मोबाइल लेके आ जाए, उसमें छोटा सा पुर्जा सिम का डाल दें, यहां बैठे अमेरिका में बात कर लें, यहां बैठे सऊदीया में बात कर लें। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह ए इंसान, ए नौजवान, ए मेरी बेटी, आप जितने मर्जी मालदार हो जाएं, जितने मर्जी खूबसूरत हो जाएं, लेकिन जब तक दिल खूबसूरत नहीं है, समझ लो तुम्हारे अंदर मोहम्मदी सिग्नल कोई नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, मोहम्मदी सिग्नल कोई नहीं आ रहे हैं। क्यों? जब तक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली सिम नहीं डालोगे, हैं? जब तक रब्बे करीम के अहकामात वाली इसमें सिम नहीं डालोगे, तो उस वक्त तक समझ लो तेरा दिल भी बेकार है, तेरी खूबसूरती भी बेकार है, तेरा माल भी बेकार है, तू सारे का सारे बेकार है, तू सारे का सारे बेकार है। इसे फरमाते हैं बंदा आमद अज़बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। वो फरमाते हैं बंदा वही होता है जिसमें बंदगी होती है, वरना तो गंदा होता है, झूठ और फरेब का पलंदा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए क्या ख्याल है, फिर इस दिल को मोहम्मदी सिग्नल देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? हैं? देने चाहिए ना, हैं? देने चाहिए। जरूरत है, जरूरत है। आज पेंट शर्ट से तू खूबसूरत नहीं नजर आ सकता। रात को करीमे लगा के सो जाए और सुबह सोचे मेरे जाहिर पे थोड़ा कोई चिट्टापन आ गया है, इससे तू खूबसूरत नहीं हो सकता। याद रखो, खूबसूरत असल ये है, खूबसूरती हकीकत में ये है कि तेरा दिल खूबसूरत हो जाए, तेरा दिल खूबसूरत हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा।
जी हाँ, जिस तरह भी मौलाना साहब ने वो नात में सुनाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात हूर से फरमाया, हाँ तू मेरे बिलाल के लिए ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सैयदना बिलाल तो रंग के काले थे, होंठों के मोटे हैं, लेकिन तुम्हें पता है बिलाल ने इस दिल को मोहम्मदी सिग्नल दे दिए थे, अल्लाह की अहकामात वाले सिग्नल दे दिए थे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, फिर बिलाल चक्का चलता मक्का की गलियों में है, अल्लाह उसके कदमों की आहट को जन्नत में सुनवाते हैं, उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। अरे बिलाल, तेरे में क्या खूबी आ गई, तेरे में क्या खूबी आ गई कि तू चले मक्का की गलियों में, तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनवाई दे। बिलाल कहता है, सुनो लोगों सुनो, मैंने इस दिल में मोहम्मदी सिम डाल ली है, इस दिल में मोहम्मदी सिम को डाल लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम भी अपने दिलों को मोहम्मदी दिल बना लें, अपने दिलों को अरबी दिल बना लें, मोहम्मदी दिल बना लें, ताकि मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये दिल अल्लाह की नजरों में जच जाए, अल्लाह की नजरों में जच जाए। और याद रखो, जब बंदा इस दिल को संवार लेता है, जो मर्द जो औरत इस दिल को संवार लेती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस पर मोहब्बत की नजर पड़ जाती है, अल्लाह उसे मोहब्बत की नजर से देखते हैं। और सुनाऊं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 10 दफा नहीं, हदीस पाक में आता है रब्बे करीम मोमिन बंदे को दिल को, मोमिन बंदे के दिल को, मोमिना औरत के दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत दिन में 70 मर्तबा रहमत की नजर से देखते हैं, रहमत की नजर से देखते हैं। आपने देखा, ये जो अल्लाह वाले होते हैं, सुभान अल्लाह, उनके पास क्या अपने क्या पराए सबका हुजूम लगा होता है। भाई ये क्यों हुजूम लग गया, ये क्यों हुजूम लग गया? ये हुजूम इसलिए लग जाता है कि इसने दिल को मोहम्मदी सिग्नल दे दिए हैं, इस पर मेरे रब की रहमत की नजर पड़ती है, मेरे रब की रहमत की नजर पड़ती है। इसलिए फिर क्या अपना क्या पराया, सारे उस दिल की तरफ खींचे चले आते हैं, सारे उस दिल की तरफ खींचे चले आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे हज़रत दाम बरकातहुम के खलीफा हैं, उनसे रायविंड के अंदर एक बुजुर्ग होते थे, मरकज में मुकीम थे। वो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या बात है, मैं जब भी आपको देखता हूं मेरा दिल आपकी तरफ खींचा चला जाता है मेरा दिल आपकी तरफ खींचा चला जाता है। और बात आपको सुनाता हूं, अल्लाह ताला ने दिल में डाल दी, सुभान अल्लाह। और ये जिंदा है तो भी दिल खींचे चले आते हैं, ये दुनिया से चला जाए तो भी मखलूक के दिल इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, तो भी मखलूक के दिल खींचे चले आते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर कबीरा, एक अंग्रेज आया, हजरत की खानकाह पे, कब्र पे, मजार पे आया, उसने सारा सर्वे किया, हजारों की तादाद में लोग थे। पूछने वाले ने पूछा, आपने क्या देखा? जिन्होंने भेजा था ना, उन्होंने पूछा आप क्या देख के आए हैं, क्या आप रिसर्च करके आए हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा, मैंने एक ही बात देखी है, एक बंदा है जो कब्र में सोया पड़ा है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कब्र में सोने के बावजूद वो जिंदा लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत कर रहा है, जिंदा लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे हज़रत दाम बरकातहुम फरमाते हैं, मैं इंडिया में गया, हज़रत ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे अकाबरीन में से, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं उनका और उनके पोते का मज़ार है, साथ साथ ही है। फरमाते हैं वहां मैं गया फातिहा कहने के लिए, तो जो मैंने वहां देखा तो वहां मुसलमान कम थे, हिंदू और सिख ज्यादा थे, हिंदू और सिख ज्यादा थे। फरमाते हैं मैंने एक गैर मजहब से पूछा, मैंने कहा भाई आप यहाँ क्या लेने आते हैं? ये तो मुसलमानों के इमाम है, मुसलमानों के पेशवा है, आप तो गैर मुस्लिम है, आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हैं? उन्होंने कहा, हज़रत जी फरमाते हैं उस बंदे ने मुझसे कहा, हजरत साहब बात ये है कि ये बंदा कब्र में सोया हुआ है, अगरचे मुसलमानों का पेशवा है,
لیکن ہم جب بھی اس کی قبر پہ آتے ہیں ہمارے دل کو سکون پہنچ جاتا ہے، ہمارے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں یہاں آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے دل کے اندر محمدی سم کو ڈال دیا، اس دل کو محمدی سگنل اس نے دے دیے ہیں، اس لیے پھر ہر چیز اس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضرت دام برکاتہم فرماتے ہیں، میں امریکہ میں ایک روڈ کے اوپر تھوڑی کسی کے انتظار میں کھڑا تھا، فرماتے ہیں ایک گاڑی ہمارے پاس سے سپیڈ میں گزری، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی گاڑی ریورس آئی، آ کے جو رکی تو فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس گاڑی کے اندر ایک عورت تھی، ایک جوان العمر بچی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس بچے کو شاید راستہ پوچھنا ہے، آپ جا کے اس کو رہنمائی کر دیں۔ فرماتے ہیں جب میرا ساتھی گیا، جا کے کہا بہن آپ نے کہاں جانا ہے، میں آپ کو راستہ بتا دوں۔ اس نے کہا میرے ذرا بات دھیان سے سننا، اس نے کہا بھائی میں اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوں اور گھر کا رستہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے، گھر کا رستہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے۔ کہا پھر آپ کیوں رکی؟ کہا میں اس لیے رکی ہوں، یہ جو آدمی کھڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ مجھے بڑا خوبصورت لگا ہے۔ حضرت جی کی طرف اشارہ کر کے ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دام برکاتہم کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ مجھے بڑا خوبصورت لگے ہیں، میں اس لیے کھڑی ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے آپ ساتھی نے وہ بات بتا دی۔ فرماتے ہم نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا میری پگڑی خوبصورت لگی ہے؟ کہا حضرت پگڑی آپ کی اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ کہا میرا لباس اچھا لگا ہے؟ کہا نہیں یہ اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، کیا یہ عصا خوبصورت لگا ہے؟ کہا نہیں یہ اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ کہا پھر کیا چیز آپ کو خوبصورت لگی ہے؟ کہا میں نے جو آپ کے چہرے پہ نظر ڈالی مجھے آپ کے چہرے کے اوپر بڑی طمانینت نظر آئی ہے، مجھے آپ کا چہرہ خوبصورت نظر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا میرا بیٹا تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت بن سکتی ہو۔ کہا اچھا وہ کیسے؟ کہا جاؤ ابھی یہ پاس ہی واش روم ہے، غسل خانے ہیں، یہاں سے غسل کر کے آؤ۔ وہ غسل کر کے آ گئی۔ جب غسل کر کے آئی فرماتے حضرت کے اسی طرح ہر وقت رومال کندھے پہ ہوتا ہے، رومال اتار کے اس بچے کے سر پہ دے دیا، اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دیا، اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دیا۔ فرمایا بیٹا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تم میرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس بچی نے وہی کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئی۔ فرماتے ہیں اس نے میرا ڈریس لے لیا، جھمکا، میں آ گیا۔ فرماتے بعد میں اس بچی نے مجھے خط لکھا، کہتی حضرت میں الحمدللہ نماز تو پڑھتی ہوں، الحمدللہ میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نہ صرف یہ کہ میں نماز پڑھتی ہوں بلکہ میری نماز کو دیکھ کے سینکڑوں غیر مسلم عورتیں بھی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ وہ دل ہے جس نے محمدی سم ڈال لی ہے، جس نے محمدی سگنل لے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ لہریں ایسے پھیلتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دوسرے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر رہی ہے، دوسرے مردہ دلوں کو بھی زندگی بخش رہی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں میرے عزیزوں اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی مردہ دل زندہ ہو جائے، ہماری آنکھ ٹھیک ہو جائے، زبان کا بولنا ٹھیک ہو جائے، کانوں کا سننا ٹھیک ہو جائے، ہاتھوں کا پکڑنا ٹھیک ہو جائے، پاؤں کا چلنا ٹھیک ہو جائے، تو پھر ہمیں اس دل کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں پھر اس دل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے جی ہم دل کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن کریں کیسے؟ دل ٹھیک کیسے ہوگا؟ بھائی اس کا نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اس کا نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تقوی ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟
ये दिल ठीक कैसे होगा, ये नजर ठीक कैसे होगी, जुबान ठीक कैसे होगी, हाथ पांव ठीक कैसे होंगे। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने इसको ठीक कर लिया है तुम उनकी सोहबत में जाके बैठना, अल्लाह तुम्हारे दिलों को भी ठीक कर देंगे। अल्लाह तुम्हारे दिलों को भी ठीक कर देंगे। क्यों? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। बिल्कुल इसी तरह लोग फासिक व फाजिर होते हैं, अल्लाह वालों की सोहबत में आ जाते हैं, रब्बे करीम सोहबत की बरकत से उनके मुर्दा दिलों को जिंदगी अता फरमा देते हैं। अल्लाह मुर्दा दिलों को जिंदगी अता फरमा देते हैं। बस एक आखिरी वाक़या सुना के अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजुल हसन मजूब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं इंडिया के अंदर, सुभान अल्लाह। अब वो मुशायरा भी पढ़ते थे और फिर उसी दौर में एक बड़े शायर थे जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े मुशायरे पढ़ते थे, बड़े शायर थे। अब क्या हुआ, उन्होंने जो हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह को देखते तो हजरत मजूब भी शायर, वो भी शायर, वो भी सरकारी मुलाजिम, ये भी सरकारी मुलाजिम, लेकिन मजूब साहब रहमतुल्लाह अलैह में आजिज़ी इनकी सारी नजर आती। उन्होंने कहा हजरत आपकी मिस्टर की टर कैसे मिस हो गई है आपकी। अब जो बंदा सूटर बूटर जरा पहन लेना वो किसी को जो है वो अपने जो है नाक पे नहीं बैठने देता है, उसके नाक पे कोई नहीं चढ़ता। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। कहा हजरत आपकी मिस्टर की टर कैसे मिस हो गई। फरमाया भाई थाना भवन है, एक अल्लाह वाले हैं जिनको हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं उनकी सोहबत में गया, चंद दिन गुजारे, मेरी मिस्टर की टर मिस हो गई है, मुझे अल्लाह से ताल्लुक नसीब हो गया। सुभान अल्लाह। फरमाते अच्छा कभी मुझे भी ले चले, कभी मुझे भी ले चले। फरमाया जिगर साहब आप चूंकि शराब पीते हैं और शराब इतनी पीते हैं कि पानी की जगह पे भी शराब ही पीते हैं, तो लिहाजा आपको अगर लेके जाऊंगा तो हजरत सख्त मिजाज बंदे हैं तो आप वहां नहीं चल सकेंगे। अच्छा चले, हजरत को मेरा सलाम ही कह देना, अर्ज कर देना और अर्ज करना कि मेरा दिल में चाहत बड़ी है आपके पास आने की, लेकिन मैं शराब की वजह, पीने की आदत, बुरी आदत की वजह से आपके पास नहीं आ सकता। अच्छा हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए, अर्ज की हजरत जिगर ने आपको सलाम कहा है और वो आना चाहता है लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया। हजरत थानवी फरमाया मजूब साहब जब वो आना चाहता है आपने क्यों मना किया। तो हजरत इसलिए क्योंकि वो शराब पीता है और यहाँ तो शराब नहीं ना पी जा सकती। हजरत फरमाया ओहो मजूब साहब अल्लाह वालों के दिल बड़े होते हैं, वो नफरत नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हम ही होते हैं, छोटा सा ऐब देख लेते हैं, हम नफरत करना शुरू कर देते हैं, हम नफरत करना शुरू कर देते हैं और अपने अयूब का समंदर हमारे सामने होता है लेकिन हम अपने आप से मोहब्बत कर रहे होते हैं, हम अपने आप को बड़ा वली अल्लाह समझते हैं और किसी के छोटे से नुक्स का पता चल जाए हम कहते हैं इससे बड़ा माज़अल्लाह कोई बदबख्ती कोई नहीं है, हम नफरत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं इसलिए अल्लाह वाले होते हैं, उनके दिल बड़े होते हैं। उन्होंने कहा मजूब साहब आप उनको ले आते, मैं अगर खानका में इजाजत नहीं तो मैं मजूब जिगर को अपनी बैठक में ठहरा लेता, तो जब बैठक में मेरा मेहमान है तो मेहमान को हक हासिल है जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे। अल्लाह अकबर कबीरा। का अच्छा अब जब वो कहें तो उनको ले आना। जब वो जाके मजूब रहमतुल्लाह अलैह ने जिगर रहमतुल्लाह अलैह से कहा हजरत फरमाते हैं आप आ जाए। मजूब वो जिगर तो खुश हो गया, अच्छा हजरत ने कहा है आ जाओ। हाँ हजरत ने फरमाया आ जाओ। कहा वो मैं जो शराब पीता हूँ। हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं आ जाओ, मेरी बैठक में जगह दूंगा, शराब पियो, शहद पियो, जो मर्जी करो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हिकमत से करीब खींचते हैं, मोहब्बत से करीब खींच लेते हैं, सुबह नफरत नहीं करते। ओए तू तो बड़ा बड़ा ऐसा है और तू तो ऐसा है, ऐसे नहीं कहते, मोहब्बत करते हैं, प्यार करके करीब कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब जब करीब कर लिया जिगर बैठक में आ गए, सलाम दुआ के बाद हजरत मैं 4 दुआएं करवाना चाहता हूँ। जी करवाओ। कहा हजरत पहली दुआ कि मेरी शराब छूट जाए,
दूसरी दुआ, मेरे चेहरे पे सुन्नत ताजा हो जाए। तीसरी दुआ, हजरत मैं हज उम्रा कर रहा हूं। चौथी दुआ, हजरत दुआ करे अल्लाह ताला मेरा खात्मा ईमान पर फरमा दे। हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। सुभान अल्लाह। अब यह मोहम्मदी सिग्नल आ रहे हैं, इस सिग्नलों से जो है वो सिग्नल जिगर के दिल में गए हैं। सुभान अल्लाह। अब जिगर वापस चला गया। अल्लाह की शान, वो बंदा जो पानी की जगह पे शराब पीता था, घर में जाते ही उसने शराब को छोड़ दिया, शराब को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। चेहरे पे सुन्नत को जिंदा कर लिया। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ है, बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा है, अल्लाह अकबर कबीरा, डॉक्टर आए हैं इलाज करने के लिए। कहा जिगर इतनी जल्दी शराब न छोड़ो, मर जाओगे। जिगर ने कहा अगर मैं शराब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा कितनी देर जिंदा रहूंगा? उन्होंने कहा आप 10 साल जिंदा रहेंगे, और अगर जो ना पीऊं फिर। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहा शायद आप 10 दिन जिंदा रह जाए, ज्यादा से ज्यादा। जिगर ने कहा अल्लाह के नाफरमानी वाले 10 साल गवारा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्मा बरदारी वाले 10 दिन मुझे गवारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे जिंदगी हो गई। फिर अल्लाह ने जिगर को सेहत भी दे दी, बहाल भी हो गए। फिर जिगर ने एक शेर पढ़ा, अपने ऊपर ही शेर कहा। कहते थे चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। सुभान अल्लाह। और फिर एक और शेर कहा। जिगर ने कहा मेरा कमाल इश्क में, मेरा कमाल इश्क में बस इतना है जिगर, मेरा कमाल इश्क में बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप सब भी अहद करते हो कि दिलों को ठीक करेंगे, हैं? दिलों को ठीक करेंगे, दिलों को ठीक करेंगे। और दिल ठीक कैसे होंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फकीर यहाँ बैठा होता है हमीदिया मस्जिद में, मेरे पास आ जाया करो, मेरे पास आ जाया करो। फिर देखना चंद दिन मुतवातिर आके देखो, अगर दिल ठीक ना हुए जो मर्जी जुर्माना डाल ले। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले, आओ तो सही, आके देखो तो सही, इंशाल्लाह दिल ठीक होंगे, नजरें ठीक हो जाएंगी, जुबान ठीक हो जाएगी, दिल पाक हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरे पास एक नौजवान आया, उसने मुझसे कहा हजरत अजीब मामला है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा मैं बैत होने से पहले मेरे ये हाल था कि जो गुनाह आप तसव्वुर करें मैं वो करता था, लेकिन जब से बैत हुआ हूं पता नहीं क्या माजरा है, मैंने कुछ भी नहीं किया और खुद ब खुद मेरी जिंदगी से गुनाह खत्म हो गए हैं, मेरी जिंदगी से गुनाह निकल गए हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप भी जुड़ जाएं, मेरे पास आया करें। यहाँ जब मजलिस जिक्र हो उसमें भी शिरकत किया करें, और फिर आके बैठ के कुछ अल्लाह अल्लाह सीख लो, कुछ दिल ठीक करवा लो, कुछ दिल ठीक करवा लो। मेहनत कर जाओगे, कब्र में जाओगे, कब्र को रोशन पाओगे, हशर में अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह को रहीम व करीम पाओगे, अफ़्व दरगुजर करने वाला पाओगे। अल्लाह से दुआ है जो अर्ज किया अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दे, और अल्लाह ताला उठने से पहले पहले हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी ये